Hello, good morning, student. I'm Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do some basic concept of macroeconomics. This video is special for English medium students. Let's see aggregate of economic system, types of goods and produce in the economic, final goods, intermediate goods, consumer goods and capital goods, concept and component of consumption expenditure, concept and component of investment, stock and flows, four sector of the economy. इकोनॉमी में फोर सेक्टर इंक्लूड होते हैं: intersector flows, real flows, money flows and circular flows. Firstly, we know about that aggregate of income economic system. First, aggregate demand, total expenditure on the purchase of all goods and services in the economy during the period of an accounting year. Okay. Next point है हमारा aggregate supply, total production of goods and services in the economy during a year. Next point देखते हैं aggregate consumptions of all goods and services economy during the period of an accounting year. Next point है aggregate investment, expenditure by all the producer in the economy, the purchase of such goods which add to their stocks of capital during the year. Domestic income generated with the domestic trajectory of accounting during a year. It is also defined as productions of goods and services economy during a year. Journal price level, index of price all goods and services as a specified period of time. Okay. Next point है type of goods produced in the economy, final goods and intermediate good. Second हमारा consumer goods and capital goods. ओके. फाइनल गुड्स वो होती है भाई जिनको फाइनली हम यूज़ करते हैं. ठीक है. दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शंस की बाउंड्री क्रॉस कर लेती है एंड आर रेडी फॉर यूज़ अ देयर फाइनल यूज़, और अपने फाइनल यूज़ के लिए रेडी होती हैं. ठीक है. उसके बाद हम we know about that intermediate goods are those goods which the have not crossed the boundary line of productions, value is still to added to be goods and which are yet not ready to use for their final use. Okay. There is some difference in between final goods and intermediate goods. The principle of difference between final goods and intermediate goods. Intermediate goods, first point देखिए, these goods may be used a raw material for the production of the other goods during the accounting year, but final goods, these goods are not used in raw material production of other goods during accounting a year. इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए. these goods are not included in the estimation of national income product और national income. ठीक है. ये इंक्लूड नहीं होती है भाई. जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं देर इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का जब हम एस्टिमेट लगाते हैं तो दिस इज नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. बट फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स आर इंक्लूड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा भाई कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. जो डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है ह्यूमन की वांट्स को, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं. इसकी देखो इनको क्लासीफाई किया गया है: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. ठीक है. फर्स्ट रहेगा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जैसे टीवी, कार, रेडियो, स्कूटर, वॉशिंग मशीन. दिस इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. सेमी ड्यूरेबल में आएगा भाई जैसे क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है ये. नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आएगा ऑल दोज गुड्स आर रिलेटिवली लो वैल्यू. ठीक है. ये लो वैल्यू की होती है. इंक, गैस, मिल्क, पेट्रोल आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल. मतलब ये लंबे टाइम तक आपका यूज़ नहीं करती हैं, एक स्मॉल टाइम के लिए यूज़ होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा सर्विसेज. सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स. ठीक है. ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज आर द, जैसे सर्विसेज फॉर डॉक्टर है, लॉयर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है. ओके. तो ये था क्लासीफाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट concept and component of investment. What is investment? We know about that capital is an important factor of production. It is stock of the produce means of production. It is stock of those non-made goods which are used for further productions. Capital stock implies production's capacity of the producer. Larger and capital stock with the producer generate than the capacity to produce goods and services. Producer always try to increase their capital stock and so that the capacity of produce increase our time, increase the stock of capital during a year, called investment during the year. Okay.
फर्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक, उसके बाद आता है हमारा चेंज कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ओके, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, यानी कि पूंजी के निर्माण का, और ए प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ओके, इंक्रीज होता है कैपिटल के स्टॉक में, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रहेगा, देखिए इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Fixed stock assessed with the producers with the end of the accounting year minus stock fixed assessed with the producer beginning of the accounting year. Fixed investment is also called fixed capital formation. Okay, let's see next point देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेज ऑफ फिक्स्ड assessed during the accounting year plus expenditure on the inventory stock and during accounting year not। देखिए इसमें क्या है स्पेशली मेंशन अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, जो अनसोल्ड स्टॉक है किसका, गुड्स का, विद द प्रोड्यूसर इन द कंसिडर्ड एज ए परचेज मेड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ अकॉर्डिंगली इट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक। ये एक पार्ट होता है इन्वेंट्री स्टॉक का। देखो इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या क्या होता है, देखो एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट फिक्स असेस्ट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा, प्लस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस होता है और नेट में निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। नोट कीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। देखो उसमें हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, फंड इज द फाउंड टू रिप्लेस द वर्न आउट फिक्स असेस्ट। ये हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ा था। अभी देखो इसमें लो इन्वेस्टमेंट, लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, ये पॉइंट जो है एक दूसरे से इंक्लूड मतलब जुड़े हुए होते हैं, डिपेंड होते हैं। लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो आउटपुट होगा, लो लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके बाद लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड होगी, एग्रीगेट डिमांड लो होगी तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होगा, उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज डिफरेंस इन स्टॉक एंड फ्लो, दैट वी नो दैट अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। मीनिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, एक स्टॉक इज क्वांटिटी मेजर अ पर्टिकुलर part of time on the January 1 2015 there may be 10,000 in your bank account। कोई भी एक फिक्स अमाउंट है जो आपके बैंक में है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो क्या होता है, व्हाट इज ए फ्लो इज क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ you may be getting 600 per month as a pocket allowance, you may 20 every day in canteen, तो दिस इज़ फ्लो, ठीक है। अगर आपके पास इतना अमाउंट है मनी अमाउंट जो आपका पॉकेट मनी है वो आपका 600 है और उसमें से क्या करते हो आप डेली जो है 20 रुपीज़ एक्सपेंड करते हो किस पर, कैंटीन पर या आपने खाने पर, तो आपका 20 रुपीज़ क्या होता है, फ्लो हो जाता है, ताकि वो आप एक मतलब उसमें से माइनस हो रहे तो वो चीज़ एक फ्लो के रूप में आती है। Let we know about that what is stock and flow। this example फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वेल्थ, नेक्स्ट पॉइंट लेबर फोर्स, कैपिटल, क्वांटिटी, सप्लाई ऑफ मनी इन अकाउंट, बैंक डिपॉजिट, वाटर इन द ओवरहेड टैंक। एक वाटर टैंक में भरा हुआ पानी जो है वो एक स्टॉक हो कहलाता है। और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, जो दिल्ली एंड मुंबई के बीच का डिस्टेंस है दिस इज स्टॉक, यानी कि वो नॉट ए चेंज। अब देखिए फ्लो, फ्लो किस में इंक्लूड होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जो मनी का हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम पूंजी का निर्माण करते हैं, चेंज द सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पर हमारा इंटरेस्ट होता है वो किस में इंक्लूड होता है, फ्लो में इंक्लूड होता है। अच्छा, जो लीकेज है, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, उसके बाद देखो स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, कार की स्पीड है वो भी एक फ्लो में यूज होती है। This is very important point, this is very important chapter for 12th class student and for BA second year student and first year wo students are economics, that's a very important video for the economics student, so please like, share and subscribe my channel
और दिस वीडियो फॉर स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ओके, तो भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ओके, ये देखो एग्जांपल दिखा हुआ है, ये हमारा देखो डिपॉजिट है 10,000 पर मंथ, ये फ्लो में आता है। उसके बाद स्टॉक जो आपके पास बैंक में अकाउंट में जो मनी है वो स्टॉक में इंक्लूड होता है। उसके बाद फ्लो मतलब जो आप विड्रॉ करते हैं उसमें से, मान लिया आपने 10,000 में 500 पर मंथ निकाल रहे हैं तो आपका फ्लो में इंक्लूड होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। यहाँ से भाई 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी, जैसे एसटेट, एमपीटेट या आरटेट, जो भी आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देते हो, नेट का देते हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर बनता है। स्टॉक एंड फ्लो का एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है या वैसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट टुडे। उसके बाद ये कह रहा है भी 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, 4 सेक्टर इंक्लूड होते हैं इकोनॉमी में। फर्स्ट हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, सेकंड हमारा प्रोड्यूस सेक्टर है, थर्ड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द एक्सटर्नल सेक्टर, आल्सो कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना, 4 सेक्टर इंक्लूड इन द इकोनॉमी। ठीक है, 4 सेक्टर होते हैं वही। ठीक है, फर्स्ट हमारा हाउस होल्ड, सेकेंड हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और फिर इसमें देखो ये इस तरह से जो है डायग्राम में दिखा हुआ है, गुड्स ऑन प्रोड्यूस द सोल्ड बाय द फर्म। इसको जो है फर्म जो है प्रोड्यूस करने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को सेंड करती है। और उसके बाद क्या होता है, फैक्टर एंड सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड दी हाउस होल्ड, ये इसमें फिर जाकर ये किस में इंक्लूड हो जाता है, प्रोड्यूस सेक्टर में खर्च कर देता है उसके बाद। ठीक है, इस तरह हमारा जो है रेसिप्रोकल चीज़ होती रहती है मनी फ्लो की। ठीक है, ये रियल फ्लो में है, ये मनी फ्लो में है। ठीक है, मनी फ्लो कैसे होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर वो यूज़ करता है, उसके बाद प्रोड्यूस सेक्टर में उसका मनी जाता है, पेमेंट करता है, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज। जो भी सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है हाउस होल्ड वाला सेक्टर, वो किसको पे करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, तो हम 4 सेक्टर इंक्लूड करते हैं इसमें, हाउस होल्ड सेक्टर और हमारा प्रोड्यूस सेक्टर, थर्ड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा। 9560045954 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी डिस्टेंस के बच्चे हैं, अब जो है एग्ज़ाम टाइम भी है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, जो आप इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में मोस्टली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है सिलेबस करवाया हुआ है। तो जो बच्चे डिस्टेंस के हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के जो डिस्टेंस के बच्चे हैं, वो मेरे चैनल पर आकर जो है पढ़ सकते हैं। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप जो है इस चैनल पर जाकर मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं आपको ऐड कर दूँगी। मैंने जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। और इंग्लिश में, हिंदी में जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आपको उसमें वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगी। तो भाई डिस्टेंस वाले बच्चे जो है मेरे चैनल के साथ जुड़िए। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जो भी है मैं आप दोनों मीडियम में आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो अभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू, फॉर एमपीटेट, एसटेट, फॉर नेट एग्ज़ाम। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ओके, थैंक यू।